नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज एनआर के बी और मैं हूं उस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Hamaरे आपको जानबूझ to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. And if you haven't subscribed to the channel, please do so. When you click to that icon, subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. Well, we will talk about the India-European Union deal, mother of all deals, as it is called, as we've been saying now for the last 5-6 days. But all the same, but the point is, Pradeep ji, the breaking news today was that there was a bank strike. Yes, there was a bank strike, all India bank strike. Bilkul. Because as far as the bank employees are concerned, they say, hey, listen, everybody in the financial sector gets a 5-day week. Bilkul, sir. Why do we have to get a 6-day week? Yes. So let's, and they were promised it. All I'm saying is, they were promised a 5-day week. Exactly. The IBA also negotiated a 5-day week with the finance ministry, I think, and that, except that everything was implemented by the finance ministry. That's right. That's what we say. But why not a 5-day week? All, as you said, all across financial institutions enjoy a 5-day week. And the point is banking efficiency and competence going up because you're working for 6 days in a week, in 2 weeks? I mean, one would love to know. Let's go straight across to Wilbur Anton Saab. Wilbur Anton Saab, namaskar. नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते, good evening. कैसे हैं सर आप? Very fine sir, how about you? Absolutely fine, I'm always fine. सर आप ये बताएं कि विल्बर एंटन साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन मुंबई के। सर आप ये बताएं कि भाई सरकार ने एक बार अगर कुछ वादा कर दिया है तो अभी पूरा क्यों नहीं कर रहे? मतलब व्हाट कुड बी द रीजन? आप बताएं ना सर प्लीज। यस सर। सर अपैरेंटली रीजन सर हमें भी समझ में नहीं आ रही है, इसलिए अल्टीमेटली वी हैड टू टेक दिस स्टेप ऑफ गोइंग ऑन स्ट्राइक। एंड दिस इशू सर, ये नई इशू नहीं है। UAB is pursuing this issue with IBA from the last 10 years. 2015 में सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे अग्री किया था गवर्नमेंट में ऑन द पायलट बेसिस कि अगर ये सब ठीक ठाक रहा तो आगे जाके हम 5-day भी इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन डिस्पाइट आर कंसिस्टेंट परसुएंस विद द IBA, नाउ दे आर ओनली प्लेइंग डिले टैक्टिक्स एंड दे आर टेलिंग अस दैट इट इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन, बट वी आर नॉट गेटिंग एनी कॉन्क्रीट आउटकम। जी, तो अभी क्या प्लान है सर? आज तो एक नेशन वाइड स्ट्राइक रही। सो व्हाट इज द प्लान नाउ? Has the government contacted you? Do you plan to intensify your stir or your agitation at some later point of time? What do you plan to do? Yeah, definitely, sir. Actually, we are guided by our umbrella organization, that is UFBU, United Forum of Banks Union. And very soon they will be having a meeting with IBA and CLC, the Chief Labour Commission, in the next month. And as per the instructions, sir, we will have to take a step forward. But definitely, the agitation will be intensified. And this time we had only a 1-day strike. Maybe in the future there will be 2-day, 5-day, or indefinite strike. You know what, Mr. Wilbur Anton, when they said that they're going to go a 5-day week earlier, which was promised to you, what was the bargain in return? What were you going to give to the people and to the government? What was the deal? Yeah. So basically, today India is 100% digitalized. Maximum transactions, have been done, converted into online digital banking. And 5-day banking today is not a luxury, but it's a necessity. And instead of the 5-day banking, we have suggested we have agreed to increase our working hours by 40 minutes daily. When second and fourth Saturdays were implemented, at that time the remaining Saturdays, which were half days, was converted into full days. And now also we have agreed for working additional 40 minutes a day. So कहने का मतलब ये हुआ कि your presence in the bank on a Saturday, is it really helping banking competence and efficiency? Since, as you said, most of the transactions are digital, where physical presence of employees is really not required on so many days. बताएं सर। Yes, sir. Yeah.
बोलिए 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 Yes, विल्बर sir, you're absolutely right on this. That because everything, most of the transactions have been converted to online, physical presence of the bank employees are not required, and we are really unable to understand how it's going to affect the productivity. Because we believe that a rested banker can give more productivity and can deliver more profit to the bank, and also help in nation building. Wilbur Anton साहब बात ये है कि we really espouse your cause that you need to have a 5-day where banking is concerned because banking itself is a very taxing kind of things. आप अगर खुले हैं तो लाइन कतार के कतार वहां पर हर बैंक में दिखता है and we see the employees are totally under pressure. But at the same time, there's increased reaction from the customer that you also need to improve your efficiency. Are we working on that also, Wilbur Anton sir? Yes, sir. See, sir, there is always a scope for improvement. We are not saying that we are one of the best, but definitely we are trying to improvise each and every day. And we have our ATMs, our CDMs, and which are working around the clock, and we ensure that they don't run out of cash. So even in these 3 days, sir, we are the employees of the bank first. So we have a duty towards the customers as well. So we have taken utmost precaution that in these 3 days the cashes have not run out from the ATMs or CDMs, and if there is any inconvenience, definitely online banking is always there to provide solution for that. लेकिन विल्बर एंटन साहब कस्टमर्स जो हैं बैंक के वो ये कंप्लेन करते हैं स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक के और सबका एक्सपीरियंस हो चुका है दैट समटाइम्स नॉट इन ऑल अभी तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है एम्प्लॉयज आर रूड दे डोंट डायरेक्ट यू प्रॉपरली दे डोंट अटेंड टू यू आपस में बात करते रहते हैं लोगों से बात नहीं करते आई माई सेल्फ फॉर एग्जाम्पल आई वोंट नेम द बैंक्स बट देयर पब्लिक सेक्टर बैंक्स टुडे दे वर नॉट वर्किंग सामने देयर वाज अ लाइन ऑफ ओल्ड पीपल स्टैंडिंग देयर और उनसे कोई बात नहीं कर रहा है तो सर आप जो हैं मैं चाहूंगा हम लोग आपके साथ हैं मैं चाहूंगा कि आप अपने एम्प्लॉइज को ये भी बोलें कि भैया जरा अपने बिहेवियर को भी इंप्रूव करिए ना एंटन साहब Definitely, sir. I agree with you on this point. There is always scope for improvement with regards to customer service. And for that, even our banking and even our trade union, we have regular training sessions with the employees, guiding them how to behave with customers, how to interact with them, and how to provide better and efficient customer service. And in some, एक चीज है कि one thing is a compulsory off for everybody on Saturday, Sundays. That is going on, but you being an essential service actually, though हम digitalize 100% digitalization में गए हैं, you being there is also chance that you divide your employees in such a way that everybody gets two days off a week. At the same time, essential service like airlines they work 24/7, 365 days. The employees get 2 days off also or 3 days off, whatever it is. But at the same time, they are working all the days. ना ऐसे कोई सॉल्यूशन सरकार की तरफ से आया है क्या आपके पास? नहीं सर, सरकार की तरफ से ऐसे कोई सॉल्यूशन आया नहीं कि इसके बदले में हम आपको और कोई सुविधा या और कोई बेनिफिट या और कोई आपको ऑप्शन दे. फिलहाल सर हम तो वी आर हार्पिंग एंड स्ट्रेसिंग ऑन 5-day banking and that is our demand for now, sir, because already second and fourth Saturday has been implemented. From the past 10 years we are pursuing on this issue and the demand will stay the same. It is 5-day banking. We don't hope to compromise on this and we are expecting that in the near future, if our agitation moves are intensified, hopefully the government may succumb to this and we may get what we I hope you don't have to. I really and truly hope you don't have to intensify your agitation. I hope the government takes a very positive view कि भाई बाकी सबके लिए 5-day week है तो यार बैंक एम्प्लॉइज के लिए क्यों नहीं है, उनके लिए भी 5-day week कर दीजिए. That's it. और क्या कर सकते हैं. और आपने कहा ही है कि भाई 10 बजे से 5 की जगह पर हम लोग 6 बजे तक काम करेंगे तो उसमें क्या definitely. So that's I think that is a fair enough thing. Anton Saab, all the very best to you. We are all with you. I hope you meet your customers' expectations of politeness, courtesy, and being responsive. And at the same time, the government hears you. They promised you after all. आप जो वादा किया वो तो निभाना पड़ेगा. कहाँ जाएंगे? Yes, sir. They shouldn't have promised. Anyway, thank you very much, Anton Saab. Great pleasure. Thank you for having me, sir. Thank you so much. Namaskar. Namaskar. Well, but the fact remains, if the government doesn't listen, as he said, the bank employees might go on an indefinite strike. तो मतलब जो हमारे बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, सर ये तो मतलब all the businesses, everything is going to be affected. That's going to be terrible. I mean,
It's going to be absolutely awful. In any event, we will continue with that story. In the meantime, we can tell you the biggest deal ever has been signed. India has signed a free trade agreement with the European Union. बिल्कुल सर. Beautiful. Absolutely lovely. So congratulations to Mr. Modi. I think we have Mr. Ali Daruwala with us. So can we go to him? I'm sure he'll be a very happy man right now. Ali Daruwala Sahab, how are you? Good evening, Jai Hind, Jai Maharashtra. नमस्कार. Over here, you Namaskar. should have let me in when that blank Banking man. You can union still answer. chief was there. can You still should have let answer. me talk to him also. Yeah. You want to say something about that? Go ahead. No, over here, you should have asked him, Rajiv sir, Pradeep sir. In fact, Pradeep sir threw in a very powerful question that you all are covered under Essential Commodities Act. In Essential Commodities Act, if you cannot go in strike, as per the new labor law, the ministry has passed a rule as to this people cannot Essential go Services on strike. Act, sir. Yes. If at all, Commodities if at all nahi, they services, go under services. stock. Yeah. Hey, Essential essential services, maintenance. essential commodity, नहीं commodity नहीं essential sir, food supplies. ESMA, Essential Services and Maintenance Act. करेक्ट It इसके is, अंदर they are क्या covered होता under ESMA. जी. है उसके अंदर एस्मा इवोक होता है जी। मगर ये लोग इतने बदमाश है इन्होंने एस्मा के अंतर्गत कोई भी लोगों को बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम करने का सिखाया नहीं है उन्होंने जी. समझो अगर हमारा पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप में अगर आपने देखा है लास्ट 5 years में एक भी फुल डे स्ट्राइक नहीं हुआ है नहीं हुआ। बहुत तो वी हैव पुट आवर शटर्स डाउन एट 7 or we have put our lights off. That's the maximum that we can do. जी जी. Over here, what you should have done to the bank people is arrest these leaders, put them in the jail because they are at par. They are at par with 7 pay commission, Rajiv sir. 7 pay commission के at Yes. par है. वहाँ पे जो ड्राइवर है, पट्टे वाला है, ऑफिस बॉय है, सर उनको 60-70,000 पगार है साहब. और ये लोग सुबह में 10:30 को कस्टमर्स को अंदर बैंक खोलते हैं, 2:30 बजे बंद कर डालते हैं. और इसमें से 2 सैटरडे कंपलसरी बंद, नेशनल हॉलीडेज बंद. अगर अब 365 डेज अगर देखे तो ये लोग केवल इनके वर्किंग डेज 200 दिन भी नहीं भरते. वो मोर्चा 200 दिन में उनका से ये लोग मोर्चा 4 था घंटा आज काम हमारे करते हैं. स्टाफ को उसके दिखाया अंदर गया. से उसके अंदर से बोलते हैं हमको सिर्फ 5 दिन काम करना है. यानी ये आर्म ट्विस्टिंग में तो और क्या है. You know, Daruwala Sahab, ये 5 days week is also possible with Saturday Sunday working with skeleton staff. आप सिर्फ Saturday Sunday छुट्टी क्यों मांगते हो? As we discuss essential service में Monday Tuesday भी छुट्टी हो सकता है, Wednesday Thursday भी छुट्टी हो सकता है, Friday Saturday भी छुट्टी हो सकता है. तो they can easily adjust. They are working staff by not essentially giving. The मोर्चा का जो हम लोग दिखा रहे हैं वो क्यों नहीं हमारे इंजीनियरिंग स्टाफ. Why aren't you showing the मोर्चा? वो बैंकर्स का जो मोर्चा है वो दिखा क्यों नहीं रहे भाई? क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? So why can't the 2 days be weekdays? It can be a weekdays also. हमने देखा एयरलाइंस चलते हुए ये सैटरडे संडे Exactly. एसेंशियल नहीं होना. सैटरडे संडे नॉट एसेंशियल. वी कैन हैव दिस ऑन मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे सैटरडे. व्हाई डिमांड की नहीं यही होगा सैटरडे संडे ही चाहिए. 5 day week can be anything. 5 day week can be 5 days weekly offs in the weekdays. Daruwala sahab, is that not a solution also? अरे प्रदीप सर जस्ट लुक एट द स्मार्टनेस. सैटरडे संडे मंडे 26 जनवरी 27 को स्ट्राइक. यानी कितना प्लान किया है. 4 ये लोग दिन, क्या 4 प्लानिंग दिन, नहीं किया 4 सर. दिन, 4 days. म्हणजे पब्लिक को कैसा होस्टेज रखना है, कैसा आर्म ट्विस्ट करना है. 4 दिन छुट्टी. यानी आप कैसा यहाँ पे मोदी जी रात दिन अपनी सेहत को उन्होंने गिरवी रख दिया ये देश की उन्नति के लिए. ये अभी भी वही कांग्रेस के वक्त भर्ती करे हुए यही लोग हैं, ये जनरल मैनेजर्स है, ये बैंक मैनेजर्स है, ये क्लर्क्स है जो अभी भी वही माइंडसेट से काम कर रहे हैं. इनको वो ब्रिटिश राज की आदत लगी हुई है. आराम करिए. कस्टमर को एकदम नहीं क्या जैसा क्या कस्टमर इनके पास भीख मांगने जा रहा है. हमारे पैसे का हम आरटीजीएस निकालते, हमारे पैसे का हम चेक इशू करते और ये लोग बात हमसे ऐसा करते जैसे कि हम उनके दरवाजे पे गए हुए भिखारी है. Point number 1. Point number 2, Saab, this is going to lead only to one thing, that is privatization. जैसा यहाँ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम की जैसी उनकी गुर्मी और बगरापना बढ़ गया तो वहाँ पे नायरा आया, वहाँ पे ब्रिटिश पेट्रोलियम आया, वहाँ पे रिलायंस आ गया. सर अब ये लोग भागते घूम रहे कस्टमर्स ढूंढने के लिए. जिस दिन ये बैंकों को नेशनलाइज को प्राइवेटाइज करेंगे, जब इसके अंदर फॉरेन का निवेश आएगा,
जैसे हमें बस आरबीएल है, एबीएन एमरो, एचएसबीसी जैसे सर्विस देने वाले रात के 8-8 बजे तक उनके लोग वहां काम करते, आरटीजीएस चाहिए तो आपके घर पे आ जाते, आपके सेविंग अकाउंट को आपको मूवी टिकट्स देते, क्रेडिट कार्ड देते, लाउंज एक्सेस देते, ये सारे सुख सुविधा देते, मगर ये चलते हुए इनकी अकड़, इनका घमंड आज तक के नहीं गया है साहब। इनको सबक देना चाहिए। I thought हम you would say आपको that. कहते हैं 2017 के अंदर Now you know why I didn't have you with Mr. Anton. वो भाग जाते हैं। वो बेचारा वो रिक्वेस्ट करके आया था, यार मेरे को मेरी ज्यादा ऐसी की तैसी मत करना। बट द फैक्ट इज, दरवाला साहब आप गलत नहीं बोल रहे हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं, हर एक को ये बोलता है कॉन्ट्रास्ट देखो यार, जो नेशनलाइज बैंक के जो एम्प्लॉइज है उनका बिहेवियर देखिए और प्राइवेट बैंक वाले जो है उनका बिहेवियर देखिए। सर आदमी किस चीज का भूखा होता है? इज्जत का भूखा होता है ना, इज्जत और प्यार का और रिस्पॉन्स का। यहाँ तो ना इज्जत है ना रिस्पॉन्स है, वो तो ऐसे करके बात करते हैं कि जैसे हमारा पैसा है तुम मांगने आए हो, एज इफ यू आर अ भिखारी हु हैज कम इनटू द बैंक, व्हिच इज That's what I टेरिबल। told you. राजीव सर, प्रदीप सर, एक बात मेरी ध्यान से सुनिए। 2017 के अंदर हमारी पेट्रोल डीलर एसोसिएशन की संगठना, जो हमारी कोर कमेटी होती है ना, हमारी कोर कमेटी बड़े छाती तान के सरकार के साथ झगड़ा करने गए कि हमारा कमीशन बढ़ाइए। धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। सर व्हाट डू यू थिंक व्हाट मस्ट हैव हैपेंड? प्रदीप सर, राजीव सर, आपको क्या लगता है क्या हुआ? मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को जानता हूं सर। बोलिए बोलिए। बोलिए, आप बोलिए बोलिए। सर 11 लोग की कमेटी थी, सबको रूम के अंदर लॉक कर दिया ये ज्वाइन और किया है। जितने हमारे लाइसेंसेस है ना, पेट्रोल पंप के लाइसेंसेस, उनको टर्मिनेट कर दिया सर। जी नेताओं के लाइसेंस को टर्मिनेट, यानी जब मैं मीटिंग से वापस पूना आ गया तो मेरा सेल बंद हो गया, मेरे पेट्रोल पंप का सप्लाई बंद हो गया, मेरे डीलरशिप को कैंसिल कर दिया। 2017 और आज 2025, सर 7 साल में किसकी हिम्मत नहीं हो गई स्ट्राइक करने की? और दरवाला साहब यहाँ पर भी आप देखोगे ये स्ट्राइक। सरकार है, ये स्टील फिस्टेड सरकार है। ये जो कह रहे थे कि इफ द थिंग्स fizzle out and the strike continues and we intensify, I can assure you all these bank They don't know what's employees, coming. leaders, maybe even from they'll be behind bars. even they may be from RSS, सबको They'll be उठा के behind bars, सरकार sir. जेल में डालेंगी। सर एस्मा लगेगा, एस्मा का दारू- मतलब है नो बेल, नो बेल। दारूवाला साहब, मोदी जी 10 कदम आगे बढ़ चुके हैं। आज आपके सैलरीज ऑन योर मोबाइल, आप पूरे 100 स्टाफ हो, आप पूरे इसको अलाइन कर सकते हो, डेट वाइज जाना, हर चीज जाना, इट इज ऑटोमेटिक, इट इज टोटली। एक ऐप डाउनलोड कर दिया आपके मोबाइल पे, आपके पूरे बैंक के नीड्स, कोई जरूरत नहीं है, आपको चेकबुक भी घर पे मिल रहा है, यू नो ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज आर कमिंग टू योर होम्स। By next year there will be no checkbook. By going in this kind of conflict, agitation, Stupid. क्या आपको लग रहा है कि और इनके नौकरी खतरे में रहेंगे? They all going to lose, as you said, petrol pump dealers all lost whatever they had. You visualize the same thing where the banking staff is concerned. दारूवाला साहब, सर 90,000 पेट्रोल पंप्स अके इंडिया में 90,000 पंप्स है। अगर पंप बोले एक दिन में बंद कर डालते तो एवरीबडी विल बी ऑन देयर नी। यस, मगर किसकी मजाल नहीं है, मजाल क्या वो पंप बंद कर सके? सर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सरकार इज अ गवर्नमेंट विद अ डिफरेंस ओवर हियर, और यहाँ पे आप सरकार को बुलडोज नहीं कर सकते। जी दुरुस्त बात। लेकिन एक चीज है दरोवाला साहब, जो प्रदीप भाई अभी बोल रहे थे ना, क्या है कि 2027 से देयर विल बी नो चेकबुक्स, चेकबुक्स आर आउट, चेकबुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गुड मॉर्निंग है सर उसके बाद। इन एनी इवेंट दरोवाला साहब, कांग्रेचुलेशंस, द ह्यूज डील हैज बीन साइंड टुडे। Modi ji has said good morning to Mr. Trump and to everybody else. Zabardast, sir. Fantastic. So this is going to control 30% of the world's GDP. 1/3 of the world's GDP is now being controlled by India and the European Union. This is wow. This is brilliant stuff. Dalwala Sahab, would you like to say something on that? Nothing. The European Union deal, the free trade, the free corridor. I will tell you one thing. When we took over, we have been doing debates very systematically, pragmatically, and with a decorum and decency over here. हम लोग कुछ कहते दूसरे चैनल्स के ऊपर एंकर्स
सामने वाले के विपक्ष के साथ मिलके आवाज हमारी वो लोग बंद करने की कोशिश करते। मगर नेशन नाउ ये एक ही ऐसा चैनल है जहाँ पे हमको बात करने की आजादी है। भले 1 घंटे का डिबेट क्यों नहीं होता है, 1 घंटे के अंदर हम हमारी मन की बात यहाँ पे बेझिझक कर सकते। मैं यहाँ पे आपको ये बात बताना चाहता हूँ, 2014 से जब मोदी जी आए हैं, इतने सारे सड़े हुए रूल्स, ऐसे इतने रूल्स थे जिसका ये दुनिया, बढ़ती हुई दुनिया न्यू एज इंडिया से कोई लेना देना रेलेवेंस था ही नहीं। सब में पहले मोदी जी ने वो रूल्स को स्क्रैप किया, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करी। और उन्होंने ये भी कहा था, आई कम टू दैट यूरोपियन यूनियन थिंग, आई एम जस्ट प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स दैट। उन्होंने ये भी कहा अगर मुझे लोग लगाना पड़े 1 लाख लोग, मैं उतने सारे लोग को लगाऊंगा, ब्लैक मनी को अनर्थ करूंगा, नॉन टैक्स पेयर्स को मैं पनिश करूंगा, क्योंकि उनका जो विजन था वाज एट पार विद यूरोपियन यूनियन। उनको ये पता था कि जब तक मैं मेरा यहाँ पे हाउस को ऑर्डर में नहीं करूंगा तो ये फॉरेन नेशनल्स, ये एफडीआईज, दिस great nations, they will not come to my country. When this transparency came, when this confidence was built, and जी foreign investments have started believing in what our prime minister and the ministry of the cabinet ministry says over here. अभी जब कोई भी लोग आदमी पैसा लगाते सर, वो लोग बहुत सारी छानबीन तहकीकात करते, और वही इंडिया में हो रहा है। Over here, you cannot bribe the officials. You cannot get your files moving with cash. You cannot do anything of this sort. Likewise, we expect that when they come to this country, they don't try and use this practice. Make them sign a deal. This sense of responsibility, this essence of consciousness has enabled the Maharashtra government to get 20 lakh crores in Maharashtra, and in the center, the foreign policies which our foreign minister in tandem with Amit Shah ji and Narendra Modi ji जो कर रहे, इसके चलते हुए आप इससे भी बड़े डील देखेंगे। जब मोदी जी ने कहा था संघ की विचारधारा से और उनकी प्रेरणा से क्या 2027 47 तक के 2047 विकसित भारत हमको बनाना है, और हम लोग 6 नंबर से विद इन द 5, वी आर समवेयर बिटवीन द 4, बट ओवर हियर सर्वश्रेष्ठ भारत ये बनाने का हमारा सपना है। बट ये सिर्फ कोई आश्वासन या कोई पॉलिटिकल आश्वासन नहीं है। वी आर वर्किंग टूथ एंड नेल, वी आर डिलीवरिंग, वी आर गेटिंग, मेकिंग इंड्यूसिव environment over here, and you will never hear my prime minister speak against any particular community, any particular business organizations. Over here, if you have a agenda, if you have something of development, आप इस सरकार की अगर आमदनी बढ़ाने की इच्छा रखते हो तो आप वहां पे आइडिया लेकर जाओ, व्हाइट पेपर उन तक बेशक पहुंचेगा और वो आइडिया को इंप्लीमेंट किया जाएगा। यू विल बी सरप्राइज दैट सिंपल पीपल हैव गिवन relevant inputs and they have been constituted into the day-to-day working of the government. US ने कहा यूरोपियन यूनियन को, the US told the European Union, you are funding your own destruction. You are funding your own destruction. Trade with India we have cancelled because of Russian oil. और आप उनसे FTA करो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और उसके बाद ये पैसा होगा रशियन ऑयल का फाइनेंस होगा यूक्रेन वॉर में, और यूक्रेन और ऑल दिस यूरोपियन, तो यू आर फंडिंग योर ओन डिस्ट्रक्शन। हाउ डू यू सी दिस यूएस थ्रेट? बोले हमने तो फाइनेंस 25% लगा था टैरिफ, आपको भी लगाना चाहिए, आप नहीं लगा, आप दोस्ती के हाथ बढ़ा रहे हो, यू आर फंडिंग योर ओन डिस्ट्रक्शन। हाउ डू यू सी दिस कमेंट दारूवाला साहब? Yeah, over here, honorable president of such a big nation, whatever he's saying, but he is going back on his words. India के ऊपर इतनी सख्ती से वो पेश नहीं आ रहे. At the end of the day, he knows that the Prime Minister Narendra Modi ji is the person who helped him in his regime, in his campaigning, and he even knows that Modi ji has not responded, and he has not uttered a word on the policies that are changing day and night from the great nation over there. But I will tell you, the silence of Modi is killing, and this silence is going to get things worked for us. And यहाँ पे कोई भी हिसाब से आप देखिए इंडिया के अंदर, मुझे यूएस पॉलिसी के बारे में तो नहीं पता है, मगर इंडियन पॉलिसी के बारे में मैं आपको इतना बता सकता हूँ, मोदी जी की जो दूरदिशा है, जो उनका स्किल ऑफ नेगोशिएशन है, I don't think we should take any threats seriously, because these threats today may become blessings tomorrow. Yes. And it will be a example
for the world order, how to deal with foreign policies, looking at India as their mandate and Right, as and we are their joined, I think, by Mr. Ishwar Manish Guru. Patre. Manish Patre Sahab of the MNS is also with us. Manish Patre Sahab, Jai Bhavani. Jai Hind, Jai Maharashtra. Jai How are you, sir? Maharashtra. इसके पहले And sorry for the late join. नहीं, कोई बात नहीं सर, मैं इसके पहले के आपके पास आऊं, एक छोटी सी बात मैं सबसे दर्शकों को बता दूं. दारूवाला साहब सुनने वाली बात है. दारूवाला साहब, great T-shirt by the way. Oh, look at that luminous yellow that he's wearing, yeah. The colors that he's wearing Beautiful. is, you know, उनका औरों को और चार चांद लगा है. लग रहा है. दारूवाला साहब पता नहीं क्या करके आए हैं, कुछ छाम छीम छुम छाम कुछ करके आए हैं जबरदस्त. कोई बात नहीं. सर, हमारी फ्री ट्रेड डील हुई मॉरिशस के साथ 2021 में, यूएई के साथ 2022 में, ऑस्ट्रेलिया के साथ 2022 में, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन करके एक है कंसिस्टिंग ऑफ 4 or 5 नेशंस व्हिच आर बिग नेशंस 2022 में, 2025 में, सॉरी, यूके 2025, ओमान 2025, न्यूजीलैंड 2025 एंड द यूरोपियन यूनियन 2026. सो पॉइंट इज, दारूवाला साहब, I think this is a huge achievement. And already the naysayers have started. This is a sellout. This is terrible. This is awful. Anyway, we'll come to that. We'll come to that in just a minute. I don't expect anything else from these guys. Patre साहब, अब आप बताएं, सर, अब सारी दुनिया की नजरें, मतलब पूरे महाराष्ट्र की नजरें जो हैं और पूरे हिंदुस्तान की नजरें हैं वो राज ठाकरे साहब के ऊपर हैं कि अब वो आगे क्या करेंगे. क्या उद्धव ठाकरे जी के साथ रहेंगे, आगे जाकर के ये जो दोनों भाइयों का जो मिलाप है चलेगा, या जिस प्रकार अभी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो उम्मीदवार थे उनकी मदद अच्छी तरीके से उद्धव ठाकरे सेना के लोगों ने नहीं करी, उसको लेकर के शायद मलाल है काफी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों में. तो आगे क्या होने वाला है सर? पाठरे साहब बताएं प्लीज. सर थैंक यू. सबसे पहले तो अभी मैंने जस्ट आप दारूवाला साहब की बात कर रहे थे तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल बातें हो रही थी जी. तो उसमें जब मैंने लास्ट में सुना उसके ऊपर एक मैं तो शेयर कभी करता नहीं हूँ ऐसे भी, लेकिन एक सोचा है शेयर तो अर्ज करता हूँ. Please. अगर पसंद आए तो ठीक है. इंस्टेंट सोचा है क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि ये जो आंकड़ों का तो खाली जुमला है. अगर आंकड़े रुक जाते हैं तो फिर देश पे हमला है. क्या आंकड़ों बात का तो बस जुमला है, आंकड़े रुक जाते हैं तो देश पे आतंकवादियों का हमला है. जी. वक्त तो अंधेरे में अकेला चला है, वक्त तो अकेला अंधेरे में चला है और यहाँ पे देश का नौजवान युवक और पूरे देश का हाल बुरा. क्या बात. ये जो हाल बुरा है ये सत्य है और ये अभी सूझा क्योंकि ये जो आंकड़े है ना, मैंने परसों भी एक जगह पे कहा कि दावोस से हमारे उद्योग मंत्री जो लास्ट ईयर उदय सामंत जी गए थे उन्होंने भी लाखों करोड़ों के बिजनेस लाए. अभी मुख्यमंत्री साहब ने भी दावोस में जाके लाखों करोड़ों के बिजनेस लाए. हमारे लोढ़ा ग्रुप का ट्रांजैक्शन देखेंगे तो कुछ 30,000-35,000 के रेंज में है. वहां पे 1 लाख करोड़ की डील साइन करके आ चुके हैं. ऊपर से एक कोई तो कांग्रेस के मेंबर है उनके साथ भी उधर जाके डील हुई है. तो वो ठीक है, इंटरनेशनल स्टेज होगा वहां पे डील होती है, लेकिन यहाँ पे आता क्या है, लोगों के हाथ में क्यों मिल रहा है? क्योंकि आज आप देखेंगे तो जलगांव होगा, यवतमाल होगा, वर्धा होगा और मेरे ख्याल से धाराशिव होगा. यहाँ पे लाडली जो बहन है वो जाके लोगों को वहां पे गाली दे रही है, उनके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे इसलिए. अभी ये लोग केवाईसी का रीजन बता रहे हैं, तो ये केवाईसी करना ही था तो पहले क्यों नहीं किया? इसका मतलब इन्होंने चुनावी जुमला जो है वो खेल चुके हैं. अभी 4 साल आगे के ये अभी जिला परिषद पंचायत समिति के बाद चुनाव आने वाला है नहीं, तो उसके बाद फिर 4 साल लोगों को ये पैसा देना नहीं है. इसलिए जो लाखों औरतें हमारी लाडली बहनें हैं उनका पैसा रुका के रखा है. बाकी राज साहब का तो आपको भी मालूम है कि राज साहब जब दिल खोल के सामने से ऐसा पीछे छुपा के कुछ नहीं करते. जो अलायंस होता है वो सामने से होता है. उद्धव साहब का राज साहब का अलायंस है. उनके एक ही टॉपिक के ऊपर राज साहब एक आए हैं कि जो महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र की माय बोली मराठी है उसके ऊपर जो हमला हो रहा है कहाँ पे, तो ये आगे का जो हम बोलते हैं कि आगे जाके बहुत बड़ा कुछ तो धोखा निर्माण हो सकता है. इसलिए राज साहब उद्धव साहब के साथ आए कि महाराष्ट्र मराठी और मुंबई को बचाने के लिए. और ये युति एक अच्छे सब्जेक्ट पे हुई है जो कि मराठी महाराष्ट्र और मुंबई का है.
जो कि दोनों भाइयों के लिए मतलब उनके दिल का काम है, वो दिल से करेंगे। पाटरे साहब, कोंकण से उद्धव जी का जो एक वर्चस्व था वो दिखने को नहीं मिला इस बार, बिकॉज रत्नागिरी हो, सिंधुदुर्ग हो, अलग अलग जगह हो, यहाँ तक कि थाने, केडीएमसी, सब जगह तो वर्चस्व नहीं रहा। क्या हम लोग मान ले जो एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे जी का असली जो विचार लेके आगे जा रहा है, झंडे लेके आगे जा रहा है, वो एकनाथ शिंदे जी है? क्या ये कॉर्पोरेशन इलेक्शन जो 29 कॉर्पोरेशन में हुआ, क्या एकनाथ जी शिंदे साहब कुछ लोगों को दिखा पाए कि ही असली वारिस पाटरे साहब? नहीं 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 नहीं, ये कहाँ पे तो गलत फहमी हो रही है। पहली बात तो अभी भी वहां पे जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव है, ठीक है। अभी भी कैसे 20 साल के बाद दोनों पार्टियां एक साथ आई है। थोड़ा सा स्थानिक हम बोलते हैं जैसे कि लोकल लेवल पे थोड़ा सा इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन आज भी उद्धव साहब जी का जो वर्चस्व कोकण में है, केडर जो है उनके पास है। एकनाथ शिंदे साहब जो आप बता रहे हैं कि उनका ये नगर पंचायत और नगर पालिका का जो इलेक्शन हुआ, ये मैं लास्ट इस डिबेट में भी बोला हूँ कि यहाँ पे जो पैसे का जो कारोबार हो रहा है ना, ये तो पहली बात तो लोकशाही के लिए बहुत हानिकारक है। आप आओ मेरे साथ, कोई भी प्रवक्ता को लेके आओ, गांव की हालत देखो। आज हर आदमी पैसे के पीछे पड़ा है, कितना मिलने वाला है इसके बारे में सोच रहा है। अगर हमारा पंचायत समिति का बजट है 2 लाख रुपया, जिला परिषद का बजट है 6 लाख रुपया उम्मीदवार को खर्चा करने के लिए। आज की बात बताता हूँ, आज फॉर्म वापिस लेने की लास्ट तारीख थी। मैं कोकण से ही हूँ अभी, लेकिन मैंने आज मेरे एक कार्यकर्ता ने सीट पीछे लेने के लिए उसको 5 लाख रुपए की ऑफर की गई है। और ये किसने की है? तो एक वहां के एमएलए ने। ये जो चालू है ना, लोग जो कॉमन लोग है जो खुद के परेशानियों से जूझते जूझते राजनीति में काम कर रहे हैं और वो समाज के लिए कुछ देने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन फिर ये जब पैसे का टॉपिक आ जाता है ना, ये आज तक राजनीति में इतने लेवल पे था नहीं। अभी हर चीज में पैसा इंपॉर्टेंट कर दिया है और ये पैसे से चुनाव जो जीते जा रहे हैं, इससे आगे जाके ये खतरा सभी को है। देश के लोकशाही को खतरा है, संविधान को खतरा है। ये सोच के आप देखिए कि जो शिंदे साहब का आप बोल रहे हैं कि राज साहब ने भी उद्धव साहब के साथ थाना के सभा में बताया था 5-5 करोड़ के ऑफर आ रहे हैं। एक कॉरपोरेशन जो कि उसका बजट कितना होगा कॉरपोरेटर का 5 साल में, शायद मेरे ख्याल से उनको 5 करोड़ रुपया मिलते होंगे खर्चे के लिए, जो कि उनका विभाग में उनको काम करना है। तो 5 करोड़ एक उम्मीदवार को ऑफर कर रहे हैं। इतना पैसा आया कहां से, इसका इंक्वायरी नहीं हो रहा है। कितने पैसे पकड़े जा चुके हैं इलेक्शन में, उसके ऊपर ये पैसे आते कहां से, उसके ऊपर बात नहीं। चुनाव आयोग तो पूरा चुप्पी लेके बैठा है हर चीज में। आगे बैलेट पेपर का इलेक्शन नहीं लेना है, इलेक्ट्रिक मशीन से इलेक्शन लेना है। तो आज मुंबई की हालत बताता हूँ, मुंबई में बहुत सारी जगह पे जब वोटिंग होने के बाद कुछ ईवीएम का रिजल्ट ही आउट नहीं हुआ है। वहां पे जो निर्णय अधिकारी है उसने क्या किया है कि अगर मार्जिन अगर 2000 से ज्यादा है और मशीन का जो वोटिंग है वो 2000 से कम है, तो जो 2000 से ज्यादा लीड पे उसको विनिंग डिक्लेयर किया है। तो ये अगर फॉल्ट है तो फिर ईवीएम के लिए क्यों? और ये मैं तो बोलता हूँ कि ये कर्नाटक का अप्रैल मई में इलेक्शन है, उसके बाद पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा वहां पे भी। सही है, बट पाटरे साहब बात ये, पाटरे साहब एक चीज मुझे समझ में नहीं आया, केडीएमसी में कल्याण डोंबिवली में आपका बहुत लॉयल राजू पाटिल, पहले एमएलए भी था पाटिल साहब, वो शिंदे साहब के लोगों के साथ दिखाई दिए। फिर राज साहब ने कहा कि लोकल लेवल पे हमने उनको निर्णय लेने का पावर दे दिया है। मगर इतने कट्टर समर्थक राज साहब का जब शिंदे साहब के लोगों के साथ हम देखते हैं तो प्रश्न होता है कि ये क्या चल रहा है। राज साहब फिर मंच पर बोले कि ये बाला साहब ठाकरे, अच्छा हो गया बाला साहब ठाकरे जिंदा नहीं, अगर जिंदा थे तो ये देख नहीं पाते थे। क्या 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 लोग समझे? नहीं, उनकी राज साहब की टिप्पणी वो बारे में की नहीं। पहली बात तो राज साहब ने बोला कि ये जो अभी जो पॉलिटिक्स चालू है, ये अगर बाला साहब रहते थे तो ये देख नहीं पाते थे, ये 100% सही है। और राजू पाटिल जी का आप बोल रहे हो, एमएनएस के लीडर है, एक्स एमएलए है एमएनएस के, और उन्होंने जो अलायंस की है उसके बारे में उनका ऑन मीडिया स्टेटमेंट है कि हमारे लोगों को पैसे का ऑफर देके प्रेशर करके अपने तरफ खींचने के लिए ये सब चालू था, और उन्होंने बीजेपी का नाम लेके बोला है। तो इसलिए सत्ता में रहेंगे तो लोगों के काम कर सकते हैं,
और रहेंगे तो एक साथ सब नगर सेवक जो हमारे हैं वो रह सकते हैं। इसीलिए क्योंकि आगे के 5 साल है, वो 5 साल में ये अभी जो चालू है ना कि लोगों को खींच के अपने पार्टी में लेके जाना, उसके लिए काम दाम दंड भेद, लोगों के कामों के लिए ये सब हो नहीं रहा है। रास्ते की हालत वैसी ही है। आज आप एक देखिए मीरा रोड का जो ब्रिज का हमारे एमएनएस के लोगों ने वहां पे निदर्शन किया है, 4 लेन का ब्रिज था, अचानक उसको बीच में आगे जाके 2 लेन का बना दिया है। वो जो बॉटल नेक होने वाला है उसके वजह से तकलीफ कितनी होने वाली है, लेकिन ये जो डबल लेन कर दिया 4 लेन से, ये किसके वजह से किया? ये सब इंफ्रास्ट्रक्चरली पूरे चूक रहे हैं, इनको मालूम है खाली पैसा निकालने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है और उससे जी। लोगों को कुछ भला So नहीं let's हो go रहा to, है। I ये just हमारे want to- कॉर्पोरेटर है, वो मनसे के साथ रहने चाहिए। इसीलिए राजू पाटिल जी ने ये अलायंस की है ना, ना। कि ये मनसे के साथ रह के आगे जाके डेवलप I want to करेंगे। go- एक just बार want to केडर just मजबूत हो clarify. जाता है, राज उसके साहब, बाद पाटिल इलेक्शन साहब, आगे के आएंगे, उस समय भी राज साहब, पता चलेगा कि वो कहाँ से लड़ेंगे। क्या दो भाइयों में केडीएमसी में समझौता नहीं है? दोनों भाई, बिकॉज आज उद्धव ठाकरे जी ने कहा केडीएमसी में एकनाथ शिंदे जी के जाने के साथ सवाल ही नहीं उठता, और जो भी हमारे उद्धव यूबीटी के लोग जाएंगे उनके स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगा। एक तरफ आप साथ में हैं, एक तरफ उद्धव साहब ने कहा कि नहीं, तो क्या ये किस प्रकार से देखे दोनों भाइयों में, क्या यहां पर सहमति नहीं है? नहीं, मैंने आपको बताया ना, राज साहब ने पहले ही बोल दिया है कि जो लोकल लेवल का डिसीजन है उसकी जरूरत जो है, वो राजू दादा जो हमारे वहां के नेता है उन्होंने भी बता दिया है कि हमारे लोग दूसरे पार्टी में लेके जाने के चांसेस जो ज्यादा थे, वहां पे बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे हैं। जैसे कि राज साहब ने भर सभा में बताया 5 करोड़ सीट पीछे लेने के लिए दे रहे थे। आप सोचिए कि चुन के आने के बाद कितना दे सकते हैं। और आप उद्धव साहब का जो बोल रहे हैं, उद्धव साहब के भी 2 नगर सेवक वहां से लापता है। हाँ। उसके लिए उन्होंने पोस्टर भी लगाया है, पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज की है। ये जो चालू है ना, मैं वही बता रहा हूँ कि ये इससे आगे जाके लोकशाही रहेगी कैसे? इनको अपोजिशन ही नहीं चाहिए। अपोजिशन को पूरा वीक करने के लिए ये काम कर रहे हैं। उससे अच्छा है सत्ता में बैठ के हम उनके ऊपर अंकुश रख सकते हैं, उनके ऊपर निगरानी रख सकते हैं, और बिल्कुल, आगे जाके ये सब चीजें जो है वो पार्टी के लिए भी अच्छी हो साबित हो सकती है। Right, so let me इसीलिए go to ये सब दारुवाला जो साहब। decision है, दारुवाला वो साहब। पे लिए गए। दारुवाला साहब, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो दी परफॉर्मेंस इज स्पेक्टेक्युलर। भले आज की तारीख में ईवीएम को ब्लेम किया जाए या किसी और चीज को ब्लेम किया जाए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह हुई है कि बीएमसी में और बाकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में भारतीय जनता पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही है जरा जबरदस्त रही है। लेकिन आज क्या हुआ है सर, पिछले 2 दिन में क्या हुआ है, जो पाटिल साहब कह रहे हैं वो गलत नहीं है सर। बैंक्स के सामने, कोऑपरेटिव बैंक्स के सामने महिलाओं की भीड़ है सर। वो कह रहे हैं कि हमारे पैसे कहां हैं सर। वो जो लड़की बहन के पैसे नहीं मिल रहे, वो कहते हैं भाई एक नया इंस्ट्रक्शन है कुछ गवर्नमेंट से केवाईसी को लेकर। सर ये क्या है? दारुवाला साहब, आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन प्लीज। समय पहले हमारे जो मित्र है पैनलिस्ट, उनकी समझाने के तरीके से तो मैं बहुत प्रभावित हूँ, और ये बहुत आकर्षक तरीके से उन्होंने बताया कि अगर अलायंस रूलिंग पार्टी के साथ में ये लोग आके अगर सत्ता में आ जाते हैं और उनके साथ में गठबंधन करते हैं लोगों के कल्याण के लिए और लोगों की हित के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। और इसको इन्होंने इतने ब्यूटीफुली समझाया क्या लोगों के हित के लिए। मगर मैं एक बात करता हूँ, अगर इन्होंने कराया तो अलायंस, इन्होंने की थी मोहब्बत, इन्होंने किया तो निकाह, मगर हमने किया तो नहीं किया बेवफाई। अगर हमने किया तो पैसे के लिए, और ये अगर हमने करा अजीत पवार साहब के साथ, तो फिर यहाँ पे वॉशिंग मशीन। तो ये कंपैरिजन मेरे समझ में नहीं आया। मे बी माय नॉलेज लिमिटेड है, अगर वो अगर समझाए, अगर इनका जो मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। सेना आपने के साथ मेरी जाना, पूरी बात उनके सुनी साथ होगी, अलायंस करना, तो उनके मैंने साथ उसमें आपको गठबंधन करना, बताया है, यानी निर्देशित किया है। बहुत ही एक अच्छा मैंडेट है सर मैं तो फिर दारुवाला जी, मुझे मैं नहीं बताऊं लगता आपको, अगर एक्सप्लेनेशन महबूबा दूं मुफ्ती के इसके साथ बारे में। कश्मीर सुधारने के लिए हमने किया था, तो इसके बारे में किसी को भी कोई आपत्ति होनी चाहिए दारुवाला थी। जी, हिंदू तो खतरे में था, आपने बचाने के लिए एमआईएम के साथ गए, वो बात अलग है। लेकिन मेरी स्टेटमेंट आप पूरी सुनेंगे, आपके रिकॉर्ड पे होगी। मैंने ये बताया है कि शिंदे साहब के साथ वहां पे एमएनएस के जो हमारे लोकल लीडर है राजू पाटिल, वो की जरूरत इसलिए पड़ी कि बीजेपी के लोग वहां पे हमारे कॉर्पोरेटर को बड़े बड़े ऑफर्स दे रहे हैं और हमारे कॉर्पोरेटर चुराने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको हमारे पार्टी के साथ बांधे रखने के लिए
सत्ता में जाना जरूरी है। इसलिए राजू पाटिल का स्टेटमेंट आप ऑन मीडिया चेक कीजिए। तो ये जो बीजेपी कर रही है इसका समर्थन हम नहीं दे रहे, लेकिन राजनीति में अपने लोगों को अपने साथ रखने के लिए हमें जो नीति अपनानी है वो वहां पे अपनाई है। और सेकंडली इम्पोर्टेंट बात जो है कि आप जो बोल रहे हैं कि Very आप good. करे वो अच्छा नहीं है, हम करे अच्छा, ऐसा नहीं बता रहे। आप एमआईएम के साथ गए हिंदुओं को बचाने के लिए, ये 100% आपके तरीके से अच्छा ही होगा। एमआईएम के साथ आपने 2 जगह अलायंस किए क्योंकि हिंदू खतरे में है, हिंदू को बचाना है, तो आपको एमआईएम की जरूरत पड़ी है। आप अजीत पवार जी को अभी भी सत्ता में रहने के बाद जब ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ उस समय अजीत पवार आपके खिलाफ जब बोल रहे थे कि पिंपरी में भाजपा ने सबसे बड़ा घोटाला किया है, जो कि वहां के एमएलए महेश लांडगे उनके ऊपर बता रहे थे, तो आपने कहा कि अभी भी आपकी ईडी के केस चालू है। मतलब आप ये जो ईडी या जो भी सीआईडी है, सीबीआई है, इनका जो जोर जबरदस्ती लोगों को बता रहे, धमका रहे, ये तो आप ऑन मीडिया कर रहे हैं। और Right. आपके So, दारूवाला साहब, खाली हमें हमारी पार्टी चलाने के लिए, हमारे नगर सेवक को बचाने के लिए जो करना है वो Relevant. अच्छा है, वो हम कर Relevant. रहे हैं। right. So, Darwal sir, please go ahead. जी बोलिए सर. You heard what he No, said. nothing. Yeah, I understood. I understood very clearly how beautifully he is trying to put across that what his party did. तो वो बेसिस के ऊपर अपने फॉक, अपने भीड़, अपने बकरियों को स्टॉक में रखना, यानी उसको इंग्लिश में कहते हैं टू कीप योर फॉक टुगेदर। तो जो 50 सांसद लेके एकनाथ शिंदे जी, उनको सबको रेलेवेंट रखने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रवेश किया, उसको 50 खो के नाम रखना। तो आज आप ऑन रिकॉर्ड जाकर बोलिए ना सर, हिंदुत्व को बचाने के लिए और अरे वंदनीय सर, बाला साहेब ठाकरे मैं जी की आपको विचारधारा प्लीज, को रेलेवेंट आपको रखने के लिए बीच में तोड़ रहा हूं, लेकिन सर आप ये 50 शिंदे खोके का जो है ना, वो वो आपके बराबर बीजेपी के किया। एमएलए भी At least बोल आप रहे हैं कि उसको 50 endorse तो खोके। करिए सर। आपको मालूम नहीं होगा, कॉर्पोरेशन में सायन के कॉर्पोरेटर के इलेक्शन के जो कैंडिडेट थे उन्होंने भी अपोजिशन के शिवसेना शिंदे गठ के कार्यकर्ताओं को आरोप दिया है, जिसने आपको मालूम होगा डुप्लीकेट फॉर्म का जेरॉक्स लेके वहां पे एबी फॉर्म भरा था। उसने भी बोला है 50 खोके एकदम ओके, उनकी भी घोषणा है, क्योंकि आपने 50 खोके दिए होंगे इसलिए आपके एमएलए बोल रहे हैं, आपके कॉर्पोरेटर लोग बोल रहे हैं, आपके लोग बोल रहे हैं शिंदे गठ को 50 खोके। तो आप ये 50 खोके दे के उनको लेके गए, वो कोई अपनी पार्टी बचाने के लिए नहीं आए, खुद को मुख्यमंत्री बनाना था, खुद के एम्बिशंस जो थे, इसलिए एक बड़े अच्छी पार्टी जो महाराष्ट्र के हित में काम कर रही होती है उसको तोड़ के आपने, उसके बाद शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ के आपने ये जो सत्ता का जो समीकरण बनाया है, ये शायद आपको अच्छा होगा, शायद इसमें कल एमआईएम भी बैठ जाएगी। दारूवाला साहब, आई वांट टू आस्क यू, जो ऑपोजिशन स्पेशली यूबीटी राज साहब जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, एक तो उन्होंने कहा कि मंगल प्रभात लोढ़ा वहां डावोस में जाके क्या जरूरत था आपको साइन करने के लिए, यहीं पर भी आप एमओयू साइन कर सकते थे। दूसरा, अडानी ने कहा कि $66 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मैं महाराष्ट्र में करने वाला हूं, तो अडानी साहब से यहीं पर एमओयू करते थे। वहां जो उनका उल्लेख था पिकनिक मनाने का जरूरत क्या था ना, दो से डेरोगेटरी टर्म, बट इतने बड़े बड़े डील्स यहां पर कर सकते थे, आप वहां डावोस में जाके क्यों किए दारूवाला साहब? ये आखिरकार जवाब तो देना पड़ेगा लोगों को। दारूवाला साहब, Yeah, in Davos we have a system whereby all the business people, world के जितने business houses है, banks है, multinationals है, उनका एक fair लगता है, fair। यहाँ पे एक फेयर के अंदर, वहाँ पे जैसे आप इंडिया अपना एक स्टॉल लगाता है, हर देश के लोग अपना स्टॉल लगाते हैं, अपनी देश की वो लोग उपलब्धि वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, शोकेस करते हैं। हर एक मिनिस्ट्री अपने डिपार्टमेंट के अंदर अगर निवेश होता है, इंडस्ट्रीज का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, मुंबई के वो पालक मंत्री है, मुंबई की अगर वो विचार के बारे में, मुंबई की सेफ्टी के बारे में, और जो अब बिहारियों को यहाँ से अब भगाया नहीं जा रहा है, वो उनका जो स्टैंड चेंज हो गया है। अभी कांग्रेस के साथ साथ में मिलकर उन लोग ने ये जो अपनी जो स्टैंड को अभी उल्टा किया है, वो सब वहां जाके बताना पड़ता है सर। महाराष्ट्र के अंदर हिंदुस्तानी सेफ है, बिहारी सेफ है, उत्तर प्रदेश का आदमी सेफ है, और यहाँ पे जो भी है ना, सीमा की हमारे पास कोई भी उल्लंघन नहीं है, और सीमा का कोई भी यहाँ पे हमें हस्तक्षेप नहीं है। ये जाके लोगों को बताना पड़ता है। वो कौन बताएंगे? वो पाखरे साहब जाके बताएंगे क्या? मैं, वो हमारे रेलेवेंट मंत्री जाके बताएंगे ना साहब। तो इसके लिए ये लोग जाते हैं वहाँ पे, इन्वेस्टमेंट पे लाते हैं। और मुझे एक बात बताइए ना, ये तो बॉम्बे में है, ये स्टेटमेंट कैसे पाठक जी इनको कंप्लीट कर दो, जो बोल रहे हैं कि वहां पे जाके पाठक जी इनको कंप्लीट कर दो। Please let me finish.
खत्म करने safe है, दीजिए इसीलिए सर, तो मेरी को आपको भी खत्म मालूम करने होगा, मनीष आप पाटिल भी- साहब। पाटिल जी को कंप्लीट करें दो, उसके बाद आप ही को बोलना है। ठीक नहीं हुई है। पाटिल जी उनको सेफ कंप्लीट है, करें दो। आप पाखरे महाराष्ट्रियन साहब, में रह के सर मराठी पाखरे मानुस के साहब, ऊपर अगर ये कोई कोई पान के स्टॉल के ऊपर गलत चली बात हुई डिबेट बोलते नहीं हैं, है, कुछ ये अत्याचार होता है, इंटरनेशनल डिबेट तो है। महाराष्ट्र 1 में करोड़ सीआर लोग पाटिल जी हमारी इनको बात कंप्लीट सुन कर दो, रहे हैं, उसके बाद आप ही को इंडिया बोलना के है। जाओगे, जनमानस तक, दिल्ली, उनके गुजरात कान जाओ, तक वहां मेरी पे बात आपको जाने रिप्लाई आएगा दीजिए, ही। यहाँ पर जाने यहाँ तक दीजिए। रहने वाले अगर लोगों वो को आज तक कहते हैं तकलीफ कि नहीं दी है। मंगल प्रताप लोढ़ा आपको जी मालूम का होगा दावोस में कॉर्पोरेशन क्या के काम इलेक्शन है, में यही तो मंगल फिर मैं प्रभात तो लोढ़ा कहता 15 हूँ, दिन थएगा। आप और राज इलेक्शन ठाकरे के जी तो प्रचार बॉम्बे में में दिखे बैठे हो, नहीं, ये आप खाली लोगों ने अपने कितना समाज निवेश को लाया, एक गट्टा आप करके लोगों ने कितने लोगों उनकी को यहाँ वोटिंग पे के लिए इन्वेस्टमेंट काम करने कर को रहे थे। मतलब उकसाया। मनीष देश पाटिल को साहब। महाराष्ट्र का कल्याण तो के लिए आप भले आप वोटिंग के लिए विपक्ष में सबको बैठे आपके हैं, साथ ज्वाइन आपने करना मनीष है। पाटिल महाराष्ट्र साहब, के please let कल्याण Mr. के लिए Daruvala हम अगर speak. अपने महाराष्ट्र में राज रह के साहब ने और मराठी के आपने लिए क्या बात पाटिल किया? साहब, allow आपने Mr. कुछ कर Daruvala लिया। to तो speak, इसके लिए please. आपको आप फैक्ट्स वहां एंड पे फिगर्स डाउस और में आपको जाएंगे। एमओयूज हम दिखा आप रहे हैं, डाउस में जाओ आप तो ये आपके बताओगे एमओयूज कि यहाँ पे दिखाइए, सेफ है, आपके तो वीडियोस आपके गृह दिखाइए। राज्य मंत्री, आपके राज साहब जी मुख्यमंत्री क्या वंदनीय कर रहे हैं? बाला साहेब इतना डर ठाकरे जी है, के पुत्र वो सेफ है उद्धव बताने जी के ने लिए मनीष ज्यादा पाटिल बात और करेंगे, मोदी साहब। वो ने दिख नहीं रहे आजू महाराष्ट्र में बाजू में। कितना यहाँ इन्वेस्टमेंट पे तो लाया, दिन दहाड़े मर्डर कितना हो रहे हैं, सुरक्षा यहाँ पे को दिन बढ़ाया, दहाड़े और रेप हो रहे आपके हैं चलते बच्चियों हुए के साथ। कितने मनीष पेट्रोल पाटिल पंप साहब, प्रधानमंत्री किसी कैसे को करेंगे? समझ नहीं आ कितना रहा लॉस कुछ। कराया, ये जनमानस को उसके बाद बताइए आप ना बोलिए सर। ना, इत्मीनान से बोलिए, कोई टेंशन नहीं है। दारूवाला साहब ये सेफ है क्या बताइए ना, कि लास्ट में गए 5-6 साल में या गए 11 साल में कितने हत्याएं हुई है। ये कोयता गैंग जो पुणे से लेके अभी नासिक या मुंबई तक आ पहुंची है, यहाँ पे रेप हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चियों के ऊपर। यहाँ पे जो लड़कियां मुंबई से रेटोरिक दिन की कम से राजीव कम सर, 40 या दिस इज 50 वेरी लड़कियां गायब हो रही मनीष है। पाटिल ये साहब, बताने के लिए डाउस में पाटिल बैठे क्या? साहब, प्लीज अलाउ मिस्टर दारूवाला टू स्पीक सर। आई कम टू यू, उसके बाद आपको जितना बोलना है बोलिए ना, प्लीज। दारूवाला साहब, यू आर आंसरिंग समथिंग, मिस्टर नंबियर हैड आस्क्ड यू समथिंग वेरी रेलेवेंट, कि अडानी जी के साथ अगर आपको एमओयू करना है, मंगल प्रभात लोढ़ा जी के साथ करना है, तो डावोस जाने की क्या जरूरत है सर, यही कर लो। और मंगल प्रभात लोढ़ा जी तो साइड साथ वाले कमरे में बैठते हैं आपके, वहां ले जाने की जरूरत क्या है सर? अब आप बोले दारूवाला साहब प्लीज। नहीं, वो कौन सा कमरा है मैंने तो नहीं देखा साहब आज तक, शायद उन्होंने राजीव बजाज जी को वो कमरा बताया रहेगा, क्योंकि आई डोंट नो स्पॉन्सरशिप कहाँ से आता है। प्रदीप सर तो बेचारे 3 साल से चैनल चला चला के थक गए, शायद यू नो द एंटी रूम ऑफ सर आपके मुंह में घी शक्कर, मगर आपके मुंह में घी शक्कर, चलो आवाज तो निकली आपके मुंह से कि हो चलो। सकता है कि लोढ़ा साहब की तरफ से स्पॉन्सरशिप आ जाए। अगर आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, अभी तक तो एक पैसा नहीं आया सर। हाँ बोलिए सर। बिल्कुल, किसका रूम किसके बाजू में ये मुझे नहीं पता है सर, क्योंकि ये रूम तो मैंने देखा नहीं है। मगर मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, लाइकवाइज हम लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाते हैं, इंडियन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इंडियन बिजनेसमैन को भी अपॉर्चुनिटीज आर देयर टू सेट अप देयर स्टॉल्स, portray what they are making to sell in European nations। उनके वहाँ पे जो आपने देखा रहेगा, इफ यू आर अवेयर प्रदीप सर एंड राजीव सर, वो लोग अपने स्टॉल्स लगाते हैं। जो यहाँ पे बनता है, जैसा ट्रम्प टावर्स पूना में बना था, उसका स्टॉल दुबई में लगा था। तो पूना के जो बिल्डर्स प्रोमोटर्स थे, दे वर सीन इन दुबई ट्राइंग टू प्रमोट टू सेल देयर फ्लैट्स, लाइकवाइज सेल देयर कमोडिटीज, सेल देयर सर्विसेज टू द नेशन। वर्ल्ड फोरम है सर, यहाँ पे आप क्यों आए, मैं क्यों आया, लोढ़ा जी क्यों आए, इनका विमान का टिकट ये क्या पैसे का बर्बादी है सर? ये वैसा प्लेटफॉर्म नहीं था। आपको ये बात जानकर खुशी होगी, इतने सारे जो डील्स साइन हो गए, निवेश ऑलरेडी आना शुरू हो गया। यूरोपियन यूनियन हैज टेकन नोट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट्स दैट आर कमिंग इन, और इसके चलते हुए जो एक पॉजिटिव लहर ये देश में चल रही है। अभी सर हमने उभर के 12 साल हो गए, ये जो हमारे मित्र कह रहे थे, बिल्कुल वो बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं की सुरक्षा है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, जो इन्होंने कोयता गैंग के बारे में बनाया, मैं उनके साथ सहमत हूँ सर, मैं उनके बारे में बिल्कुल सहमत हूँ। मैं तो कहता एक भी प्राणी नहीं जाना चाहिए, एक भी हमारी महिला जो है इतनी सुरक्षित होना चाहिए कि उसके तरफ कोई आंख उठा के देखने की हिम्मत ना करे। ये सिर्फ सरकार की नहीं, हम जैसे पक्ष के अंदर जो लोग हैं, इनके जैसे जो शेर है, हमारे सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि हमारी महिलाओं के साथ में कोई भी दुर्व्यवहार So why नहीं the करे। surge? But Yes, at the surge same क्यों है? time, at the same time, जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, जो जॉब जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हुंडई, बड़ी बड़ी कंपनीज ये महाराष्ट्र में आ रही है, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज है। गढ़चिरौली जैसे छोटे से शहर के अंदर, पूना से रूबी हॉल क्लिनिक ने जाके वहां पे 1000 बेड का हॉस्पिटल लगाया। तो ये उपलब्धियां आ रही है। बेशक हम लोग सत्ता में अब 2024 में आए हैं,
पहले मिलीजुली सरकार थी, अब हम सिंगल हैंडेड गवर्नमेंट चला रहे एक नाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी के साथ में। बिल्कुल इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में कोविड से जैसे हम उभरते उभरते बाहर आए हैं, हम सब लोग ने कंधे को कंधा मिला के कोविड में काम किया। राज जी का आप तो जानते हैं, राजीव सर, प्रदीप सर, मैं आदर करता हूं क्योंकि वो हमेशा लोगों के दिलों की बात करते, जो चीज लोगों को चुभती है उनको चुभती है, और वो चीज को वो ब्लेटेंटली और ओपनली और वेनमली ये टीवी डिबेट्स के माध्यम से और उनकी सभा के माध्यम से वो बात को आगे रखते हैं, और वो बात को सरकार में आगे लेके जाने का प्रयास हम प्रवक्ता लोगों का है और हम वो करने की कोशिश करते हैं। मगर डेवोस के अंदर ये जो हमारे जो नाम प्रदीप सर ने कहे, क्या आप अगर डील साइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ डील हमारे यहाँ का माल बेचना भी तो उतना इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे उपलब्धि है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, जो यहाँ पे फैक्ट्रीज है, हमारा बाय प्रोडक्ट्स भी इंटरनेशनल मार्केट में बिकना उतना ही जरूरी है। Darwala Saab, you should hear yourself. One second. You should hear yourself. Very frankly. Which is all right. You're doing a great job as a BJP spokesperson. I really admire you for it. But the fact is, मंगल प्रभात लोढ़ा जी, अडानी साहब, सिंघानिया साहब, रुइया साहब, अंबानी साहब, सर अरे हर रोज तो मिलते हो यार उनसे, यहाँ पे यहाँ साइन कर लो। खैर एनीवे, अप टू यू, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्रदीप जी कुछ पूछना चाह रहे थे? इट्स डिफिकल्ट फॉर यू अली दारूवाला साहब। गणेश नाइक मंत्री कैबिनेट बोल रहे कि आप बीजेपी ने परमिशन डाला तो दे दिया तो पूरे एकनाथ शिंदे कैंप को, आवाज अटक रहा है सर आपका। अच्छा, एकनाथ शिंदे कैंप को सफाया कर देंगे, एग्जिस्टेंस को खत्म कर देंगे एकनाथ शिंदे जी गुट का। Now this kind of aggressive statement coming from Ganesh Naik, who is a minister in Fadnavis cabinet, Eknath Shinde ji is deputy CM. Darwala sahab, can you hear me? तो क्या ये किस प्रकार से आप लोगों के क्या इतना बोलना जरूरी है कि आपके एग्जिस्टेंस को खत्म कर देंगे आप? पाटिल साहब 2 मिनट सुनते फिर आपके पास ये आप बता दारूवाला साहब। Yeah, I don't know why this should not be made as a responsible cabinet minister. गणेश नाइक जी बहुत टॉल लीडर है, बहुत सीनियर लीडर है, मगर वहाँ पे उनका क्या वेंजेंस है, वहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स इन बिटवीन ठाणे एंड न्यू बॉम्बे, आई वुड नॉट नो, आई वुड नॉट बी अ राइट पर्सन टू कमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने मालूमात लेना जरूरी है, मगर ये कहना गलत है मीडिया के ऊपर आके क्या हम फिनिश करेंगे, ये वो ऐसे कोई किसी का करियर यहाँ पे फिनिश नहीं कर सकता है, जो वो अपने मेहनत से आता है। और एकनाथ शिंदे जी भी कोई ऐसे स्मॉल लीडर नहीं है सर। आज 50 सांसद, 3 कॉर्पोरेशन ताबे में रखना, और अभी जिला परिषद के अंदर वो कितने सीट्स ला सकते सर, ये एक नेशनल लेवल के लीडर है सर। मिनिस्टर सर, so all we are saying is this is not done, and I agree with you sir, but the point I agree is with you that it should refrain from making such statements. But he's a minister in the government. How can he make such a Yeah, he's a statement against the cabinet. deputy He's a CM cabinet. कि मैं खत्म कर दूंगा? Anyway, पाटिल साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, आप प्लीज बोलिए। गणेश नाग साहब कह रहे हैं एकनाथ शिंदे को खत्म कर देंगे, सर बोलिए ना। प्रवक्ता दारूवाला साहब को थैंक यू बोलूंगा क्योंकि उनको राज साहब भी पसंद है। ऊपर से हम जो सब बातें बताई है वो दे आर एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। मैं छोटे मेरे कुछ सवाल है इसमें। राज साहब, हाँ, मेरे छोटे दारूवाला साहब सवाल है। एक तो लोढ़ा साहब गए, सब ठीक है। लोढ़ा साहब का जो कि पूरे उनके एम्पायर का जो एक रिवेन्यू हम बोल सकते हैं वो कुछ 30 to 35,000 करोड़ है। तो वो जो 1 लाख करोड़ की जो डील हुई है उनके साथ, वो पैसा वो शायद उनको कोई सरकार में से पीछे के आगे से देने वाला होगा, स्पॉन्सरशिप के स्वरूप से वो डील फाइनल होने के लिए ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये आंकड़ों का खेल है, उनको 65,000 या ऊपर से कम ज्यादा जो भी इन्वेस्टमेंट है उनको कोई तो बैकएंड में बैठा होगा जो इन्वेस्टमेंट दे सकता है। वो यहाँ पे लाके क्या करने वाले हैं, इसका अगर हम एक डिबेट पे बैठ जाए तो पता चलेगा इसमें से कौन सा रोजगार आने वाला है। क्योंकि आपको एक सिंपल थिंग बताता हूँ, गणेश नाइक जी का आपने अभी बोला, उन्होंने कॉर्पोरेशन के पहले भी खुलेआम चैलेंज दी थी कि अगर हमें बीजेपी से फ्री हैंड मिलते हैं तो ठाणा में भी यहाँ पे शिंदे साहब की सरकार आने नहीं देते थी। और आज का भी उनका सेम स्टेटमेंट है, उनका यही कहना है कि हमें फ्री हैंड दीजिए, पूरे शिंदे सेना को खत्म कर देंगे, उनके पॉलिटिकल करियर को खत्म कर देंगे। तो ये जो बातें हैं ये हो रही है, इसका रीजन मालूम नहीं है आपको, ये मालूम होगा, आप तो बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है। सेकंडली सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये डावोस का भी छोड़िए, बाकी सब छोड़िए, आज आप एक बात तो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नीतीश राणे जो कि बहुत बड़े अभी मंत्री है,
जैसे कि आपके अभी बताया कि लोढ़ा साहब भी मंत्री है, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, तो ये मेरे ख्याल से महीने में 4-5 बार तो कैबिनेट के लिए एक साथ बैठते होंगे। लेकिन आपको कहना है कि आपको कैबिन मालूम नहीं है कौन सी है उनकी, तो शायद आपको एक बार विधान भवन जाना पड़ेगा, आपको देखने पड़ेगी कौन से मंत्री कहाँ बैठ रहे हैं और इनकी एक गैदरिंग कहाँ पे होती है, इनकी एक मीटिंग कहाँ पे चल जाती है, वो सब आपको देख के आना चाहिए, क्योंकि ये लोग एक साथ रहते हैं। मैंने आपको जो बताया कि आप बोल रहे थे कि यहाँ से असुरक्षित जो भावना है जो बिजनेसमैन की में है, तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में बिजनेस, आपको भी मालूम होगा कि 1965 से आज तक यहाँ पे जो औद्योगिकरण है उसके वजह से लोग बाहर बाहर से पूरे इंडिया से आ रहे हैं। यहाँ पे किसी को बाला साहब ठाकरे जी ने भी बताया था कि उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी, क्यों बोला था? क्योंकि वो जो आक्रमण हो रहा था मराठी के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर, मुंबई के ऊपर, इसलिए उन्होंने वो फाइट की थी जो हम सबको पसंद थी, क्योंकि हमें मालूम था कि जहां पे हम रोटी मिल रही है हमें, वो रोटी अगर हमें इस कर्मभूमि से मिल रही है तो हमें उसके साथ लॉयल रहना चाहिए। आज राज साहब ने भी 2006 में पार्टी ओपन होने के बाद 2008 में जो आंदोलन किया, ऐसा नहीं किया उन्होंने, पूरी एग्जाम्पल दिया था। वो एग्जाम्पल ये था, जैसे कि वैसा आपको बताता हूँ कि एक कांच की बरनी में अगर 2 टमाटर रहते हैं और उसके ऊपर तीसरा टमाटर डाल दिया जाए तो उसकी हालत बुरी हो जाएगी। आप और मैं मुंबई में रहते हैं, हमें मुंबई से कुछ ना कुछ तो हमने लिया है तो उसे देना भी चाहिए। दारोला जी, इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको भी मालूम होगा कि आज दिल्ली के बाद सबसे खराब हवा मुंबई की हो चुकी है। इसका रीजन है कि ये जो कंस्ट्रक्शन का लोड चालू है, हर जगह कंक्रीट चालू है, हर जगह सीमेंट चालू है, जहां से मिलता है सीमेंट निकाल रहे हैं, जहां को मिलता है वहां पे डाल रहे हैं और इसके माध्यम से जो पैसा कमा रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन मुंबई का हर आदमी आज पोल्यूशन की वजह से सफर कर रहा है। ये छोटी बातें नहीं है, ये सत्ता से भी बहुत बड़ी बातें, लोगों के जीवन के साथ रिलेटेड बातें हैं, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये जो हवस है कि हर जगह हमारी सत्ता होनी चाहिए, तो इससे जो आउटपुट होना चाहिए था, 11 साल में यूपी में ग्रोथ नहीं हुआ है, बिहार में अभी तक ग्रोथ नहीं हुआ है, जो पिछड़े राज्य है वहां पे ग्रोथ नहीं हुआ है। और आप जो बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रही है डावोस से, कुछ नहीं आ रही। आपको मालूम होगा कि जो एक कंपनी, मेरे ख्याल से नायब जी अगर मैं करेक्ट होगा तो एक देश में जिसे बैन कर दिया गया क्योंकि उसके केमिकल के वजह से वहां के लाखों लोग मर चुके हैं और उनके साथ लाखों लोगों के ऊपर इम्पैक्ट हुआ। वो कंपनी, उसका नाम मेरे पास व्हाट्सएप पे होगा, मैं रत्नागिरी में आई है लास्ट ईयर इट के इज एन दिन की इटालियन वजह से, कंपनी, जिसको वहां पे इटली से क्या नाम बोले, इटली से आई है कंपनी। एग्जैक्टली, बराबर। तो उसके वजह से आज उसको पूरा विरोध चालू है कोकन में। दूसरी बात आपको साफ तौर से बोलता हूँ कि विदर्भ में पूरे चंद्रपुर से लेके गढ़चिरौली हो, वहां तक पूरी जो जमीन थी वहां पे माइनिंग के लिए बहुत बड़ी लोगों को अपॉर्चुनिटी दे चुकी है। वहां पे जंगल तोड़ रहे हैं, पूरे जंगल के जंगल उखाड़ रहे हैं माइनिंग के लिए, वहां से जो खनिज मिल रहा है, तो वो खनिज के लिए ये सब चालू है। लेकिन अगर हम हर जगह पर्यावरण को अगर हम चैलेंज देते रहे तो शायद हमारे आगे के लोगों के लिए, हमारे आगे के पीढ़ी के लिए हम पूरा नुकसान खड़ा करके जाने वाले हैं। अंग्रेज भी जब व्यापार करने के लिए आए तो पहले सबके कंधे के साथ कंधा मिला के अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके शुरुआत की, हमारे ही लोगों को अपॉइंट किया और बाद में हमें 150 साल उनके साथ युद्ध करना पड़ा है। तो आप भी सोचिए कि ये बीजेपी जो कर रही है, ये जो कुछ चुनिंदा लोगों को हाथ में पूरा देश देके हमें कहाँ लेके जा सकती है। अगर इसमें अगर आपको लगता है एयर पोल्यूशन हो, माइनिंग के वजह से होने वाली पर्यावरण की भूमिका हो, या जो कोकन में आई हुई कंपनी हो, ऐसे जो बहुत सारे 100 सब्जेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन ये अगर आपको करेक्ट लग रहा है तो आपकी इच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से ये गलत है। Sir, M-I-T-E-N-I, Miteni, that is the name of the firm. एग्जैक्टली मिटेनी जो इटली में बैन हो गई है फर्म, उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। आ जाओ भाई, जो आप इटली में जो आपका काम अधूरा, हम उसके लिए उसके दरवाजे खोल के लोगों को बता रहे हैं ये अच्छी कंपनी है, उन्होंने वो प्रोडक्ट बंद कर दिया है। मैं आज आपको लेके जाता हूँ कोकन में, कोकन की MIDC में ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऐसे बोल के कि ये सब चीजें बंद है और छुपके से चालू है। बहुत से बार उनकी कंप्लेंट होती है, लेकिन
सत्ता में बैठे लोगों के साथ उनकी बहुत अच्छी पहचान है, तो ये सब आगे नहीं। और ये भगत ऐसी सिंह। कंपनी यहाँ पे चलेगी, कोकन भूमि का स्वर्ग कहा जा रहा है इंडिया के, तो ये स्वर्ग को ये नरक बना देंगे। भगत सिंह कोश्यारी, पद्म भूषण, पाटरे साहब, क्या विरोध है? फडणवीस साहब ने कहा जिनके दिल छोटा होता है, कब छोटा है मैं उनको कहता विरोध। हूँ कि ये जो भाजपा की राजनीति है, महाराष्ट्र मराठी मानुष को यहाँ पे आप नीचा दिखाओ, उनके बारे में गलत बोलो, आपको अच्छे अच्छे पद मिलेंगे। जैसे कि भगत सिंह कोश्यारी जी है, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान किया था। उन्होंने यहाँ के मराठी मानुष के बारे में एक वर्ड बोला था कि यहाँ से मारवाड़ी और गुजराती लोग अगर चले गए तो यहाँ का पैसा खत्म हो जाएगा। अरे यहाँ पे पैसा था, इसलिए ये लोग यहाँ पे आए। और ये सब कहने वाले भगत सिंह कोश्यारी जी को पद्मश्री मिलता है। इनके राज्य में कुछ भी हो सकता है। एक पक्ष को फोड़ के भाग के जाने वाले गुवाहाटी से यहाँ पे आने वाले को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। यहाँ पे दूसरे के पार्टी से गुंडागर्दी करते वाले लोगों को, अपने साथ लेने वाले को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। यहाँ ये लॉयल्टी है क्या बीजेपी की? आज जो इलेक्शन के पहले बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के लोगों को पकड़ के मार रहे थे, कार्यालय फोड़ रहे थे, इसका रीजन वही था कि ये जो उद्रेक है अभी ये उनमें भी शामिल हो चुका है। उनको भी लग रहा है कि ये हो रहा है, ये गलत है और ये होना नहीं चाहिए, ये बीजेपी की विचारधारा नहीं है और ये नहीं है, ये डिक्लेयर है। जी दुरुस्त बात। दारूवाला साहब, पद्म भूषण फॉर भगत सिंह कोश्यारी। फडणवीस साहब ने कहा जो विरोध कर रहे हैं उनका दिल भी छोटा है, दिमाग भी छोटा है, ऐसे इश्यूज उठना नहीं चाहिए। दारूवाला साहब। भगत सिंह कोश्यारी जी इज अ मेंबर ऑफ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। इंद्रेश जी के साथ उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने कोविड के माध्यम से, और जो महाराष्ट्र के अंदर एज अ गवर्नर उन्होंने काम किया, और जो उनका नॉलेज सनातन के बारे में और पूरी सभ्यता के बारे में, पंढरपुर के बारे में, रुक्मी विट्ठल प्रभु जी के बारे में जो उनका नॉलेज है वो अपार्ट है, उनका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो जो लोगों को अवार्ड्स मिले हैं उनको परख कर, उनकी ऊपर स्टडी करके, उनकी ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर ये सारे अवार्ड्स दिए गए हैं। और भगत सिंह कोश्यारी जी इतने टॉल लीडर है, अगर आप उनकी भाषण कभी सुने, उनका नॉलेज सुने, और उनका जो पकड़ है, उनका जो पकड़ रामायण महाभारत के ऊपर, और जो हमारे प्रभु संत तुकाराम महाराज के ऊपर जो उनका नॉलेज है, पंढरपुर के ऊपर, वारकरी के ऊपर, सर उसका आप और सर महात्मा फूले और रमाबाई फूले के बारे में जो उन्होंने कहा उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो कहा। Listen, it is I'm telling you about the larger aspect of this. I have got certain reservations about certain things which I speak openly. That doesn't make me a good person or a bad person, or I should be hated about it. That is my understanding. What our spokesperson says, Sir, why did he have to say whatever he said about Chhatrapati Shivaji? आपको रखना चाहता हूँ at the end of this debate, इम्पोर्टेंट बात I would like इसमें to ये है say, कि जिसको पद्म जिसको भूषण पुरस्कार जैसा किया है उनको हम भारत वंदन का करते हैं, सबसे उनको बड़ा नमन अवार्ड करके जिसको प्रणाम दे करते हैं। रहे हैं, वो बंदा कंट्रोवर्सी में सब जगह अटका हुआ है। आपको शायद, आप कोविड का अभी नाम लिया, तो कोविड में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हमें फंड देने का जरूरत थी, उस समय पे हमें पीएमओ के लिए फंड जमा करना है, इसके लिए फोर्स करने वाले भी कोश्यारी जी थे। और ये जो पीएमओ को जो फंड जमा हुआ है कोविड में, उसका क्या किया ये आज तक किसी को मालूम नहीं। दूसरी बात, इसमें आज के मेरे ख्याल से पद्मश्री या पद्म भूषण, एक तारपा जो हमारा आदिवासी लोग का संगीत है वो बजाने वाले हमारे एक बंदे हैं, उनको भी वो अवार्ड मिला है। तो वी आर रिस्पेक्ट फॉर दैट, कि हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि अपनी कला जो सालों साल, आज 40-50 साल से वो लोग कैरी कर रहे हैं और समाज को एक कुछ अच्छी दिशा दिखा रहे हैं, अपनी एक कला दिखा रहे हैं, उसके लिए वी सैल्यूट हिम। लेकिन आपके जो कोश्यारी जी है, ये कंट्रोवर्सी करके आप जो बोल रहे हैं ना, इन्होंने कहाँ पे भी पारायण नहीं दिया है, कहाँ पे भी भक्ति गीत नहीं सुना है। इन्होंने जो अभी गए 5 साल से या 6 साल से जो महाराष्ट्र इनको रिकॉग्नाइज या पहचान रहा है, तो उन्होंने ये कंट्रोवर्सी खड़ी की है। बीजेपी के लिए काम करना, महाराष्ट्र के महापुरुषों का अपमान करना, यहाँ के मराठी मानुष का अपमान करना, और जो कंट्रोवर्शियल आदमी है उसे पद्म भूषण जैसा बड़ा अवार्ड देके हम लोगों को क्या बता रहे हैं कि आगे जाके क्या करना चाहिए। बीजेपी के साथ काम करो, बीजेपी के लिए अच्छा बोलो, आपको ऐसे सब अवार्ड मिल जाएंगे। तो जो लोग डिवोटेडली काम कर रहे हैं, उन लोग का क्या होगा? जी
Darwala Saab, would you like to say something more, or No, shall we no, put an nothing. end to I'm this done with subject? it, sir. I said, as my last statement would be, I respect and kudos and total gratefulness to the selection committee for giving Bhagat Singh Koshari ji the award, because I have seen, I've worked with him, I know what a great human being he is. That's all. Well, good for दारूवाला him. साहब, जो आप कांग्रेस के ऑपोजिशन, देश के ऑपोजिशन लीडर को तीसरा रैंक, जस्ट इफ यू वांट टू कमेंट ऑन दैट, तीसरा रैंक में बिठा दिया, रो में बिठा दिया, क्या ये शोभा देता है ऑपोजिशन लीडर को इस प्रकार से बिठाना? He's got a cabinet post. He's LOP. दारूवाला साहब, is it not breach of protocol and insulting an opposition leader? अडवाणी जी को फ्रंट रो में बिठा देते. Can't hear you, sir. Darwala Saab, आपकी आवाज नहीं आ रही. हाँ सर, मैंने कुछ सुना नहीं. एक रेंज आज का ये Sir, राहुल गांधी जी. थर्ड रो में राहुल गांधी जी रेंज और नहीं आ रहा है सर. थर्ड रो में राहुल गांधी जी और खड़गे साहब को बिठाया रिपब्लिक डे में. क्या आप रेस्पेक्ट कदर नहीं करते? जब पाटरे साहब कह रहे हैं कि आप कदर नहीं करते ऑपोजिशन लीडर्स का, आपके जब अडवाणी जी ऑपोजिशन लीडर थे तो फ्रंट रो पर बैठते थे वो, along with the prime minister. Along with the Prime जिसकी Minister. कदर जनमानस ने नहीं करी, जिसकी कदर लोगों ने नहीं करी, जिसने Sir, we are talking about protocol. हासिल नहीं किया, Sir, ये political जिसको बात हो लोगों ने गई. घर पे बताया, उनको फर्स्ट रो में हम को नहीं बताने वाले. वो तो सवाल उन्हें जनता जनार्दन Sir, को पूछना चाहिए. it's a matter of protocol. Sir, there is an order of precedence. जैसे इसको warrant of precedence बोलते हैं सर. Leader of the opposition has a cabinet rank. उसका पूरे आपके चैनल के ऊपर निषेध व्यक्त करता हूँ कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को ये कभी पसंद नहीं आएगा जो मराठी मानुष को अपमानित करता है, महाराष्ट्र को अपमानित करता है. ऐसे बंदे को इतना बड़ा अवार्ड देना ये बहुत बड़ी गलती है सरकार की और हम उसका निषेध कर रहे हैं. निषेध कर रहे हैं. Right, gentlemen. Thank you very much for joining us. Great pleasure having you on the show. Thank you so much. Namaskar. Well, I don't know. Mr. Darwala has the advantage of more knowledge than I do, especially with regard to Mr. Bhagat Singh Koshari. I'm sure there must be something good that he must have done. After all, you don't get a Padma Bhushan just like that. It's a work for it. He must have worked for it. But all I'm saying is that his comments with regard to Jyotiba Phule and his wife were terrible. With regard to Chhatrapati Shivaji Maharaj was even worse. So, I don't know. And you're not a normal person. You are then the governor. You're the governor. Governor. On any platform, even on individual, your own, I don't think you can have this kind of comments. Sir, you have no private life. Let's Yes, be very clear. you don't have a private life. You have no personal comments once you are the governor of a state. एक बार आप governor बन गया बस बन गया. That's it. Otherwise, you should not have been governor. सी सादी बात है ना प्रदीप जी. बिल्कुल. In any event, as far as we are concerned, I am very happy with the India-European Union deal that has been signed. बहुत ज़बरदस्त. मोदी जी ने कमाल कर दिया साहब. And as usual, people have already started commenting. मतलब के other side. This will be the worst deal for India. This is the worst thing for India. पता नहीं क्या मतलब. I don't know which world they are living in. मतलब यहाँ तक कि किसी ने तो ये कहा है कि these are just photographs and optics. कोई डील साइन नहीं हुई है. कैन यू बिलीव दैट? अरे भाई, जब तक इन प्रिंसिपल डील साइन नहीं करोगे, यूरोपियन पार्लियामेंट उसको एंडोर्स कैसे करेगा? आई एग्री, इट हैज टू बी एंडोर्स्ड बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट, बट फर्स्ट इट हैज टू बी साइन. व्हाट विल द यूरोपियन पार्लियामेंट एंडोर्स इफ दे डोंट साइन इट? And she's been authorized. That's why she was a state guest. Yes, she and the president of the European Union Yes, sir. and the other president, they have been authorized. Yes. दूसरी बात क्या है? The same European Parliament has suspended its deal with the United States and instead has signed a deal with India. और लोगों को साहब ये हजम नहीं हो रहा है. अब क्या करें? क्या वो फडणवीस साहब ने क्या बोला था? तुम्हें मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? Yes. Absolutely. Sorry, I've got a cough. I think this supari went the wrong way. But all I'm saying is, this is great, absolutely great. And I really love it. And Lakshman Hakeji was supposed to be with us, and I had said that it will be impossible for him to join us. And he didn't join us. Nahi aaye, as usual. But all the same, I'm really and truly happy with what's happened today. Fantastic. The India-European Union deal is really the mother of all deals.
लेट्स बी वेरी क्लियर। और ये वही लोग हैं प्रदीप जी बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी विरोध किया था 1991 में, जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई हिंदुस्तान में। तब ये कह रहे थे हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। ये वही लोग हैं, आज भी जिंदा है इनमें से बहुत लोग। एंड टुडे दे हैव ग्रेट नॉस्टैल्जिया फॉर डॉक्टर मनमोहन सिंह। वेल दैट्स जस्ट अबाउट इट एज फार एज टुनाइट शो इज कंसर्न। आज के शो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी Absolutely, when you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. नेशन नाउ, The fastest growing channel of the nation, Nation Now. प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद। Jai Hind.